इकट्ठे हुए हैं। Here we are going to see the annual day of our Tiny Tots. On behalf of Vidyadevam family, from the bottom of my heart, I myself, Manish Trivedi, welcome you all on behalf of Vidyadevam preschool family. हमारे बीच हमारे अतिथि पधार रहे हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है, तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। जोरदार तालियां हो जाए अपने बच्चों के लिए। Without wasting time, moving forward towards the annual day main feature presentations. Here I would like to talk about the Vidyadevam family. Do you know what is the meaning of Vidyadevam? किसी को मालूम है विद्यादेवम का मीनिंग क्या है? Any one of you? You can guess. Yes, ma'am. હેલો. Yes, ma'am. આપણામાં જે સ્કિલ છે, આપણામાં જે આવડત છે એ આપણે બીજાને આપવી, અર્પણ કરવી, એટલે કે વિદ્યા આપવી, અર્પણ કરવી. यानी कि विद्या को अर्पण करना. Am I right? Am I right? Yes or no? Okay, thank you. So moving forward, I would like to call all the dignitaries of the dais and our director Shri Shailesh Sutaria sir, principal ma'am and all the dignitaries. I request you all to please join the lamp lighting ceremony. दिए से स्वागत करेंगे, शुरुआत करेंगे और हम सब आरती में तालियों से जुड़ेंगे. દીવો જેમ અંધકારનો નાશ કરે છે, જ્ઞાનની જ્યોત અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરે છે. દીપ એ માત્ર દીપ નથી, પરમ જ્યોતિ છે. અજ્ઞાનીઓ માટે જ્ઞાનની જ્યોત છે, પામર માટે પરમની જ્યોત છે. દ્વૈતનું અદ્વૈત સાથે મિલન છે અને પરમાત્મા સાથેની ગોષ્ઠી છે. તો આપણે સૌ દીપ જ્યોતિમાં જોડાઈશું, ત્યારબાદ આરતીમાં પણ તાળીઓ સાથે જોડાઈશું. I request all of you to please stand up for आरती. आप सभी से निवेदन है कि भगवान की आरती हो रही है तो हम सब पूरे आदर के साथ जूते निकाल के आरती में तालियों के साथ जुड़ेंगे. यही है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी. सहजानंद दयाळु, सहजानंद दयाळु, बड़वंत बहु नामी. ओम जय सद्गुरु स्वामी. चरण सरोज तमारा वंदू कर जोड़ी, प्रभु वंदू कर
तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी ओम जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगट नु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्म थी छूटी काळ कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरशे ओम जय सद्गुरु स्वामी आवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी ओम जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बड़वंत बहुनामी ओम जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज ની જય. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. प्लीज़ टेक योर सीट्स. आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पे बैठ जाए. एंड अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज ऑफ डायस टू टेक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स. सभी मेहमान से निवेदन है कि अपनी जगह पे बैठ जाए. Moving forward towards today's evening, परम कृपालु परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. Once again, my humble salutations in the lotus feet of Almighty Lord. And I would like to state one quotation in Gujarati. રીત છે અહીંની જુદી જુદી, રીત છે અહીંની જુદી જુદી, રસમ રિવાજો છે અહીંના નોખા. અમારે મન તો શબ્દ એ જ કંકુ અને શબ્દ એ જ ચોખા. તાળી તો વગાડો, ભલે ના ગમ્યું હોય. Thank you so much for your clapping, for inspiring me. Now moving forward, I would like to call the director of Vidyadevam family, Mr. Sailesh Sutaria sir. A big round of applause for the powerhouse of Vidyadevam, for the young, enthusiastic, the challenge taker, Mr. Sailesh Sutaria sir, for the formal welcome of today's evening. In the presence of Almighty Lord Sri Swaminarayan, the base of the school, and the divine blessings we are getting from our Guruji, His Divine Holiness, Sri Prabhucharan Dasji Swami from Swaminarayan Temple, Dabholi. All the Vidyadevam family members, starting from the directors, principals, teachers, partners, administrator, teachers, and even class 4 members. Today, we are very much fortunate that we have, with the blessings of Almighty, a very high qualified dignitaries who are here, and we are very much thankful and honored because of their presence.
our annual function already half success we have achieved. आधी सक्सेस तो हमारे ये जो मेहमान आए हैं उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है, उनके साथ साथ पेरेंट्स ने टाइम निकाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे ऐसा पता चला था कि कुछ पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, हमें बाहर जाना है, हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम फंक्शन में नहीं आएंगे, बच्चे को भी नहीं भेज सकते हैं. So today I would like to formal welcome you all, and along with that उसके साथ मुझे थोड़ी सी बातें करनी है आपसे. हम सबको पता है चाणक्य, बिजनेस में जो होंगे उन सबको तो मालूम ही है कि चाणक्य नीति बहुत ही फेमस है और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे वीडियोस और उनकी जो प्रीचिंग्स है हमने सुनी है, हमने देखी है. बट पेरेंट्स के लिए भी चाणक्य ने नीति दिया था. ये मुझे लग रहा है कि बहुत कम पेरेंट्स को पता होगा कि चाणक्य ने पेरेंट्स के लिए बोला है. आज हम लोग बहुत जगह पर देखते हैं पेरेंटिंग की आर्ट, मतलब पेरेंट्स को कैसे रहना चाहिए बच्चों के साथ, पेरेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बहुत बार देखी है, बहुत बार सुनी है. पर आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है न्यूरो पेरेंटिंग. न्यूरो पेरेंटिंग एक नई चीज़ है क्योंकि चाणक्य ने वो बताया है और चाणक्य ने एक श्लोक दिया है जो एग्जैक्टली मुझे वो श्लोक आपके सामने रखना है. लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरते. चाणक्य ने 3 स्टेज में बच्चे की लाइफ को डिवाइड किया है एज अ पेरेंट का कंट्रीब्यूशन में. पहला जो लाइफ है वो है लाडयेत. बच्चे को जन्म से लेकर 5 साल की उम्र होती है. आपने देखा विद्यादेवम के अंदर 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, तो ये स्टेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. आने वाले सालों के अंदर हम दूसरा जो स्टेज है ताडयते यानी कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए है वो, और मित्रयते मतलब मित्र बनना है 16 साल के बाद, 15 साल के बाद. पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में, दैट इज पालयते. बच्चों को लालन पालन करना है. जब से वो बॉर्न हो रहा है तब से हमने देखा है कि हम नॉर्मली बच्चों को क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए मना करते हैं. कहीं जा रहा है बच्चा चल के, वहाँ मत जाना, गिर जाएगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना. बट न्यूरो साइंस ये कहता है कि बच्चे के दिमाग में नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने का जो समझ है वो 8 साल के बाद डेवलप होता है, और हमने तो उसको 2 साल से ही बोलना शुरू कर दिया है. यहीं से उसकी एनर्जी जो है डाउन होने की शुरुआत होती है. आज देख रहे हैं बैक स्टेज में बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पर फ्रेंड्स है, उनका कंफर्ट जोन है. हमारे घर में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर बच्चे कंफर्ट जोन में होते हैं, बट जब कोई गेस्ट आते हैं, जब कोई ऐसा इवेंट होता है, तब हम बच्चे को क्या करते हैं, डांटते हैं, उसको चुप होने के लिए बोलते हैं, उसको कहीं पे छोटा मोटा थप्पड़ भी लग जाता है बच्चे को. ऐसा नहीं होना चाहिए पेरेंट्स. मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि जिन पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बताया था स्कूल में कि हमारे पास टाइम नहीं है. पेरेंट्स, दुनिया में आपके बच्चे की खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं है. अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट में मानता हूँ बहुत वीक है. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. प्रायोरिटी सेट करना, प्रायोरिटी पे रखना और प्रायोरिटी की चीज़ें जो है हमें देना, ये हमें तय करना चाहिए कि किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी पे रखना है. आज स्टूडेंट्स की लाइफ में पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है.
मैं कुछ पेरेंट्स से बात कर रहा था, वो पेरेंट्स मुझे बता रहे थे, सर हम छोटे थे ત્યારે અમારા મા બાપે તો અમારી પાછળ કંઈ ધ્યાન આપ્યું નહોતું, એમને ખબર નહોતી અમે કયા ધોરણમાં ભણીએ છીએ. પણ આજે બાળક દરેક ક્લાસમાં એના ક્લાસ ટીચર કોણ છે, શું ભણે છે, કેવી રીતે ભણે છે, બધી જ જવાબદારી પેરેન્ટ્સને લેવાની છે. કેમ કે આજે આપણે નિયમ પ્રમાણે ઘણા બધા ચેન્જીસ આવ્યા છે, શિક્ષણ નીતિ બદલાઈ છે, એના અંદર પણ વાલી તરીકે તમારી જે ફરજ છે એ બહુ જ મોટી છે. બાળક કેવી રીતે ગ્રો થાય છે, મોટું કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે, એના વિચાર કેવા છે, એમાં શું ચેન્જીસ લાવવા છે, એ તમારે જાતે નક્કી કરવાનું છે. કોઈ તમને શીખવાડશે તો એની વેલિડિટી બહુ લાંબી નહીં રહી. આજે હું તમને એમ કહું કે નર્સરીવાળા સ્ટુડન્ટ્સને તમે ઘરે જઈ અને 1 to 50ના સ્પેલિંગ શીખવાડી દેજો. કદાચ પેરેન્ટ્સ શીખવાડી પણ દેશે, પણ એને લાઈફ ટાઈમ તક હમણાં યાદ નહીં રહે, કેમ કે મેં તમને કીધું છે. એની જગ્યા પર જો તમે એઝ અ પેરેન્ટ તરીકે તમારી બાળકની શું આવડત છે, એની કેપેસિટી શું છે, એના પ્રમાણે એને ઓળખી અને પછી તમે એને શીખવાડો. બની શકે એવું 1 to 10 એને આવડે, 1 to 20 આવડે, તો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એ બહુ જરૂરી છે. એટલે આપણી લાઈફમાં આપણે આ વસ્તુ કરવાની જરૂર છે, એઝ અ ફેસિલિટેટર બનવાની જરૂર છે, નહીં કે એઝ અ ટીચર તરીકે. કેમ કે આ નવી શિક્ષણ નીતિનો સૌથી પહેલો નિયમ આ છે. આપણે કેવી રીતે શીખવાનું છે બાળકને એ શીખવાડવાનું છે. શું શીખવાનું છે એ આપણે નથી શીખવાડવાની જરૂર. જો આપણે આવું કંઈક કરીશું તો બાળક જાતે શીખી જશે, તો એનામાં કોન્ફિડન્સ, એનામાં ડિસિઝન પાવર બહુ જલ્દી વિકસી જશે. ફોરેન કન્ટ્રીઝની અંદર આજે એજ્યુકેશનમાં બહુ મોટી ક્રાંતિ આવી રહી છે. ભારતને એ લાવવી છે, પણ બહુ બધા એની પાસે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એટલે બહુ બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ એને નડી રહ્યા છે. ત્યાંના બાળકો 7મા ધોરણમાં 8મા ધોરણમાં આવે અને ત્યારથી જ નક્કી થઈ જાય કે મારે આગળ શું ભણવું છે. આપણા બાળક 10મા ધોરણમાં આવી ગયા પછી પણ એમને કન્ફ્યુઝન છે, અને 10મા પછી 11મા ને 12મામાં સાયન્સ અથવા કોમર્સ કરીને બી ઘણા બાળકોને પછતાવો થાય છે કે કોમર્સ નહોતું લેવાનું, સાયન્સ લેવાનું હતું, સાયન્સ નહોતું લેવાનું, કોમર્સ લેવાનું હતું. 12મા ધોરણ એટલે કે 17 વર્ષની ઉંમરે પણ એ લોકો ડિસિઝન નથી લઈ શકતા. એની પાછળનું કારણ છે એમનો કોન્ફિડન્સ લેવલ. એ કોન્ફિડન્સ લેવલ કેવી રીતે નથી આવ્યો? કારણ કે બાળપણમાં 2 વર્ષથી લઈને 8 વર્ષ સુધી આપણે શું કીધું છે એને? આ નહીં કરવાનું, અહીંયા નહીં જવાનું, પડી જવાય, વાગી જાય, બધી વસ્તુ નેગેટિવ કીધી છે. એટલે એનો કોન્ફિડન્સ લેવલ છે એ નીચે જતો રહ્યો છે, એટલે એ ડિસિઝન નથી લઈ શકતા. હું હંમેશા એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. મારી સ્કૂલની અંદર જ્યારે હું નર્સરીથી 2nd સ્ટાન્ડર્ડના પેરેન્ટ્સને મળતો હોઉં અને એમને કહેતો હોઉં કે તમે થોડુંક ધ્યાન રાખો, ટીચર્સને મળો, ટીચર્સ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે એ તમે બાળકને કરાવો, એનાથી વધારે નહીં. ત્યારે પેરેન્ટ્સ શું કહે? સાહેબ બહુ નાનો છે હજી, બહુ નાની છે હજી, મોટા થશે ને ત્યારે સમજાવશું, અત્યારે એને રમવા દો, કંઈ વાંધો નહીં. 7મા 8મામાં ને 9માના વાલી પણ અહીંયા બેઠા હશે. એના વિદ્યાર્થીઓના વાલીને જ્યારે હું વાત કરું ત્યારે શું રિપ્લાય આવે તમને ખબર છે? ત્યારે રિપ્લાય એવો આવે, હવે તો મોટો અને મોટી થઈ ગઈ છે, હવે અમારું સાંભળતા નથી, હવે શું કરીએ સાહેબ બોલો, કંઈક કહીએ તો ખોટું લાગી જાય છે, રૂમમાં દરવાજો બંધ કરી દે છે, હવે આજના છોકરાઓને કંઈ કહેવાતું નથી. તમે જો બંને કેસની અંદર 2 વર્ષથી 5 વર્ષના બાળકોને આપણે એવું સમજીએ કે હજુ નાનું છે પછી સમજાવશું, મોટું થઈ ગયા પછી આપણું સાંભળતા નથી. આ બંને કેસની અંદર થયું શું? બાળક એની જાતે મોટું થઈ રહ્યું છે, એની ચોઈસ પ્રમાણે મોટું થઈ રહ્યું છે. પેરેન્ટ્સની જે ગાઈડન્સ જોઈતી છે એના વગર બાળક મોટું થઈ રહ્યું છે. અને આને લીધે આજે બાળકો ન કરવાના જે સ્ટેપ્સ લઈ રહ્યા છે, કારણ કે એ જે એને પ્રેમ અને હૂંફ ઘરેથી મળવી જોઈએ એના જગ્યા પર એ બધું એને ક્લાસમાં એના મિત્રો પાસેથી મળે છે. અને એના મિત્રો દ્વારા જે વસ્તુ આપવામાં આવે છે એમાં કોન્ફિડન્સ બિલકુલ નથી, ખાલી ને ખાલી કમ્પેરિઝન થાય છે. અને એ કમ્પેરિઝનમાં બાળકને પ્રેશર આવે છે, એન્ઝાયટી થાય છે, અને બાળક તમને એક્સપ્રેસ કરી શકતું નથી.
અને અમુક અંશે એવું પણ બને છે કે બાળક કંઈક એવું ઊંધું સ્ટેપ લઈ રહે છે જેના માટે આપણે કોઈ દિવસ પણ વિચાર્યું નથી. सो पेरेंट्स, आपको यही करबद्ध विनंती है, एटलीस्ट हमारे विद्या देवम के जो पेरेंट्स हैं उनको तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि कितनी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो जितने भी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का है. कल हमने यहाँ ग्रैंड रिहर्सल की थी, मैं देख रहा था नर्सरी के बच्चे भी कॉन्फिडेंटली डांस करते हैं. बहुत सारी प्री स्कूल्स के फंक्शंस देखे, उसमें नर्सरी के बच्चे सिर्फ खड़े रहते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं बस, या ढूंढते हैं पेरेंट्स को, वो कहाँ डांस करना है क्या करना है सब भूल जाते हैं स्टेज पर आने के बाद. पर आज आप देखिएगा, अपने बच्चों को एनकरेज करिएगा, क्योंकि हमारा जो एनुअल फंक्शन है, मैं सिर्फ अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक यूनिक इसलिए है कि पूरा म्यूजिकल स्किट के साथ चलता है. आप देखिएगा कि हमने आज जो प्रोग्राम बनाया है उसका कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है वो ऐसा होगा कि बच्चे का जन्म होने से उसके घर में किस तरीके से उसका लालन पालन पोषण हो रहा है, स्कूल में कैसा हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ रहा है, उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी के बारे में हमने आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको आज का प्रोग्राम बहुत ही यूनिक लगेगा, बहुत ही डिफरेंट लगेगा, और उसमें आपके बच्चे जो यहाँ डांस करने आएंगे तो सच में आपके बच्चे कुछ ना कुछ बेटर करेंगे, आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ उनका जो भविष्य है वो बहुत ही उजला होगा एंड सक्सेसफुल होगा. विद दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक all the parents who has come here to showcase and to see the students' performances, and I am very much thankful from the bottom of my heart कि इतने सारे डिग्निटरीज़ ने अपना कीमती समय निकाला है, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो गेस्ट है सैटरडे है, सबको काम रहता है, उनका 2-3 प्रोग्राम लाइनअप हुआ है, बट मैं फॉर्चुनेट हूँ कि सब ने टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया, हमारे बच्चों को टाइम दिया है कि आज उनका आशीर्वाद जो है, उनकी जो ऑरा है इस फार्म के अंदर रहेगी, जिससे हम सभी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे. एंड विद दैट नोट आई थैंक यू सो मच एंड हार्टिली वेलकम यू ऑल. थैंक यू. Now, moving forward, first of all, thank you so much to the director, sir, who gave a wonderful speech on this beautiful evening. Now, moving forward, it's time to felicitate our guests. हमारी भारतीय संस्कृति है कि अतिथि का आदर सत्कार होना ही चाहिए, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक to call Mr. अश्विन भाई डुंगरानी, our beloved guest. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मिस्टर अश्विन भाई डुंगरानी को, जो सूरत के एक इंस्पायरिंग यंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्पिरिचुअल मेंटर है. उनकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन और पॉजिटिव स्पिरिचुअल गाइडेंस हम सभी को जीवन में प्रेरणा और प्रेरणा का स्रोत बन के रहेगी. I request Director Sir of Vidya Devam, Mr. Sailesh Sutaria Sir, to felicitate him with a special customized trophy. A big round of applause for the dignitaries. जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिवादन किया जाए. Next, we have our beloved dignitary, Mr. हर्षद भाई पंड्या. मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर हर्षद पंड्या जी को, जो सूरत के रिनोन्ड हाईली रिस्पेक्टेड एडवोकेट है. विविध क्षेत्र में उनका अनुभव और समाज में उनकी प्रतिष्ठा उन्हें एक अत्यंत सम्मानित व्यक्तित्व प्रोवाइड करती है. उनका भी तालियों से जोरदार स्वागत अभिवादन किया जाए.
moving forward, we have our beloved guest, Mr. Kiran Khokhani sir, a Gujarati filmmaker, actor, director, municipal councillor of Surat City. मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ खोखानी सर को, जो कि एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर है. ही इज़ वेरी मच पॉपुलर फॉर मल्लू माडी. ज़ोरदार तालियां हो जाए. रिक्वेस्ट सुतरिया सर, शैलेश सुतरिया सर, टू डू दी ऑनर्स. Next, I would like to call the eminent educationalist, Mr. श्री दिनेश भाई गोंडलिया सर. जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिवादन किया जाए. दिनेश सर का एजुकेशन डायरेक्टर से जाने जाते हैं. शिक्षा और समाज सेवा में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा शैलेश सुतरिया सर से कि उनका ट्रॉफी के द्वारा स्वागत अभिवादन करें. और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनका इंट्रोडक्शन देने आएंगे खुद द डायरेक्टर ऑफ विद्या देवम शैलेश सुतरिया सर. एक गेस्ट है हमारे, वैसे तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बट मैं उनको जानता हूँ अपने बचपन से. मतलब मेरे फादर के भी वो मामा जी है, और बचपन से देख रहा हूँ मैं उनको एज अ डॉक्टर. ही इज़ गिविंग हिज सर्विस टू द सोसाइटी, और तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए मैंने देखा उनको कि उन्होंने डॉक्टर की सर्विस की है, और आज उनकी वैल्यू सोसाइटी में बहुत ही बड़े लेवल पे है. एंड अ रिस्पेक्टफुल पर्सन. नॉर्मली डॉक्टर्स को हम देखते हैं थोड़ा सा बिहेवियर जो होता है उनका और होता है या थोड़ा सा तीखा होता है, बट डॉक्टर विनोद भाई शेटा, उनका जो नेचर है बहुत ही लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है. और हम देखते हैं नॉर्मली कोई भी बड़े फंक्शंस के अंदर एक वेटरन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है. तो ये मेरी शुरुआत है विद्या देवम के मंच से कि हम हर साल इस मंच से अब से एक ऐसे सोसाइटी के पर्सन को हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर विनोद भाई शेटा टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज अलॉन्ग विद द फैमिली. फैमिली के साथ में उनको इनवाइट करना चाहूँगा. मैं राजू भाई शेटा को इनवाइट करूँगा कि आप उनको एस्कॉर्ट करें. घनश्याम भाई मान्या को भी मैं इनवाइट करूँगा कि आप आए स्टेज पर. Thank you so much, all the dignitaries, and thank you so much to the Vidya Devam family, those who have taken the initiative to felicitate such a dignitaries, and they are also getting the motivation from such awards. So moving forward, here we are going to fascinate the Mont graduation ceremony of English medium. I would like to call Master अखंड गाबाणी. आप अपने बच्चों का तालियों से स्वागत कर सकते हो, जितना जोर हो उतनी जोर से स्वागत कर सकते हो. अनन्या गढ़िया, आयान पटेल, दर्श मोरडिया, दर्श पटेल, दर्शन मांगुकिया, देवांश खूंट, देवर्ष खूंट, धर्म माधवानी, ध्यानी देसाई, ध्यान तारापरा,
દિયાન સવાણી, હિયાન પાંડવ, હેત કાકડિયા, જનવ કથિરિયા, જપ સચાપરા, જેની વઘાસિયા, જ્યોત અણધણ, કર્તવ્ય કોશિયા, કવિરા નાથાણી, મિહાન સલિયા, મિશ્રી કળથિયા, મિષ્ટી કાકડિયા, મોક્ષ કાકડિયા, નેત્રી ગોયાણી, પરમ ગોયાણી, પ્રાંશુ ડાંગસિયા, પ્રત્યક્ષ શુક્લા, પ્રીસા ગોટી, પૃથા ડાંગસિયા, રેયાંશ વિરડિયા, સચી ચૌધરી, શિવાંશ સલિયા, સ્વરા કુંજડિયા, તક્ષ પટેલ, ઋતા ગોહિલ, વ્યાના ગોહિલ, Yana Patel and Yuvraj Maru. These are the tiny tots of our UKG upper kindergarten, and I would like to call our dignitaries to provide them graduation certificate of Montessori. I kindly request Mr. Ashwin Bhai Dungrani to please come forward on the stage. Mr. Harshad Pandya sir and Mr. Kiran Khokhani sir to please come forward on the stage and felicitate our kids with this Mont graduation certificate. A big round of applause for all these graduates, Mont graduates. Along with them, I would like to request the director of Vidyadevam family, Mr. Sailesh Sutaria sir, and principal ma'am, Aarti Sutaria ma'am, to please join the photography. बच्चों से चीज फिर से एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिवादन किया जाए। हमारे गेस्ट जिन्होंने आज हमारे प्यारे बच्चों को मॉन्ट ग्रेजुएशन की पदवी दी है, सर्टिफिकेट दिया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस। So this is the beauty of today, that our tiny tots are being graduated from Montessori. हम सब ने ये सारी चीज़ें विटनेस नहीं की होगी। We used to go at a small village where you can see that we are having the blossom sound of cow, sparrows and all this. आप सभी ने ये एक वर्ड सुना होगा, देखा होगा, बाल मंदिर। कितनों ने सुना है? कितने जाके आए हैं? अरे हाथ क्यों नीचे कर रहे हो? बाल मंदिर तो गए होंगे ना? हाँ देखो, हमारे गेस्ट भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे हैं जो बाल मंदिर में से अपनी प्राइमरी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक स्टेज उन्होंने पार किया है मोंटेसरी का, इसीलिए उनको आज ये हमने मॉन्ट ग्रेजुएशन यानी कि मोंटेसरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की पदवी दी है। नाउ नेक्स्ट I would like to call all the Gujarati medium UKG students for the Mont graduation, and here we have the students' name as follows: Anvi Sutaria, Aditya Dobaria, Arav Viradia, Kaira Patel, Gatha Koshia, Janmay Kadathia, Trisha Kadathia, Dikshant Navadia, Garviba Padhyar, Dhwani Donda, निधि भावनगरिया, नित्या विराणी, युग कुमार भिखड़िया, रक्षय सोनाणी, रियान भावनगरिया, रियांश कड़थिया, वर्णी गोपाणी, वर्णी शेटा, शिवाय धानाणी, हेत खोखाणी एंड लास्ट हैनी मांगुकिया। ज़ोरदार तालियां हो जाए ये सारे गुजराती मीडियम के यूकेजी के बच्चों के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द बिलाउड रिस्पेक्टेड डॉक्टर
Vinod Bhai Seta to please come forward. I request Sailesh Sutaria sir to please escort our dignitaries, and also I would like to request Shri Dinesh Bhai Gondalia to come forward to provide them certificates, and please come forward for the photography. Also, I request Principal Ma'am to join them. Thank you so much, all the dignitaries, that you specially spare time for our tiny tots to motivate them. ये वही बच्चे हैं जो इनकी तरह कोई एडवोकेट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई स्पिरिचुअल लीडर बनेगा. उन सभी के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां उनके माउंट ग्रेजुएशन के लिए. Now, with the kind permission of our director sir, I just want to take 5 minutes, if the time permits. Extra mic please, extra mic please. आशीष सर, जो भी जवाब देने खड़ा हो उनको माइक पहुंचाइएगा. I would like to hear the name of our preschool. क्या नाम है? क्या नाम है? आपके बच्चे ये जो स्कूल में पढ़ते हैं, प्री स्कूल में, वो स्कूल का नाम क्या है? एक साथ बोलिए, और जोर से बोलिए. वेरी गुड. नाउ, व्हाट इज द थीम ऑफ टुडेज इवनिंग फॉर दिस फंक्शन? कौन बताएगा? आप बताना चाहते हो सर? यस, आशीष सर. एनुअल फंक्शन. एनुअल फंक्शन. हाँ, हाँ, एनुअल फंक्शन का थीम क्या है सर? इंटरनेशनल प्रे स्कूल इन विद्यादेवम एनुअल फंक्शन. और यस सर, प्लीज आप बता सकते हो थीम ऑफ द एनुअल फंक्शन? As said by Sutaria sir, that theme is from the ground level, from day 1 to student becomes a professional. Till that, how he nurture, how he grows. आप तो that is the बड़े theme. ऑनेस्ट स्टूडेंट हो. आप तो हाँ, बड़े ऑनेस्ट स्टूडेंट हो. वहां पे जवाब लिखा है फिर भी बोल नहीं रहे हो. क्या लिखा है? व्हाट इज द थीम ऑफ टुडे? नन्हे कदम की नन्हे कदमों की ऊंची उड़ान. ऊंची उड़ान. तो हमारे बच्चे ऊंची उड़ान कब भरेंगे? उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी? मैं वो एक एक क्वालिटी आप सभी से सुनना चाहता हूं. प्लीज, आपके बच्चे में ऐसी कौन सी क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आपका बच्चा भविष्य में ऊंची उड़ान भर पाएगा, सक्सेसफुल पर्सन बन पाएगा, सक्सेसफुल लीडर बन पाएगा? कैसे, कौन सी क्वालिटीज होगी? They should be confident. They should be honest. कॉन्फिडेंट. वेरी गुड. जोरदार तालियां सर के लिए. नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से. हाँ, हमारे पास टाइम करे. सुतरिया सर मेरे सामने बड़े गुस्से से देख रहे हैं. एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अ पर्सन मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू स्पीक. यस सर. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज द मेन की टू गेट द सक्सेस. बिना डिसिप्लिन पे आप कुछ भी पा नहीं सकते हो. और कुछ. चलो, एक हो गया कॉन्फिडेंस, एक हो गया डिसिप्लिन. और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? કાકા તમારે છે ને માઇક ધરી દેવાનું આમ, એટલે તરત બોલવાનું ચાલુ થઈ જાય. સંસ્કાર એન્ડ સંસ્કૃતિ. યસ, વેરી નાઇસ. અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ ફોર હર. સંસ્કાર એન્ડ સંસ્કૃતિ. આપણા સંસ્કાર અને આપણી સંસ્કૃતિની જાળવણી, આપણે આપણા સંસ્કૃતિની જાળવણી નહીં કરીશું તો તકલીફ પડશે. સ્ટેજ પર છું એટલે વધારે બોલવું નથી. તકલીફો કેવી ચાલે છે સમાચારમાં સાંભળી લેજો. ઓકે, નેક્સ્ટ. 4 ક્વોલિટીઝ આઈ કેમ ટુ નો. कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन, संस्कार एंड संस्कृति. मतलब
संस्कृतिनी जाळवणी. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट. आप अगर आपकी आवाज अच्छी है जोर से बोलो, हम सुन लेंगे. यस सर. क्लैरिटी, क्लैरिटी इन द थॉट्स. हम कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं होने चाहिए कि मैं चीची खाऊं कि बउओ खाऊं. हाँ, व्हाट शुड आई डू, दैट मस्ट बी क्लियर फॉर मी. जैसे कि आज सर ने बता दिया है मुझे कि मनीष टाइम पे शुरू हो जाना चाहिए, टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए. सो माई थॉट इज़ क्लियर दैट आई हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड. संस्कृति का प्रेजेंटेशन भी आ गया, और कुछ आगे आगे जल्दी. यस सर. obedient and well mannered. ओबीडियंट एंड वेल मैनर्ड. ओबीडियंट एंड वेल मैनर्ड. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, कयाग्रो नहीं. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन धीस टू. कयाग्रो અને આજ્ઞાકારી એ બેમાં ડિફરન્સ છે, આપણે એમાં ચર્ચા નથી કરવી. નેક્સ્ટ. બસ આટલું જ. જો 6 થઈ, મારે ગણવામાં ભૂલ થઈ હોય તો કહેજો. हाँ हाँ यस. लॉयल्टी. लॉयल्टी. हाँ, लॉयल्टी को हिंदी गुजराती में क्या कहते हैं? प्रामाणिकता. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. प्रामाणिकता नहीं होगी तो क्या होगा? फ्रॉड. सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. बाकी कुछ हो ना हो, हमारा बच्चा फ्रॉड ना बने, फ्रॉड ना करे, वो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए. और 2 क्वालिटीज मिसिंग है. कॉन्फिडेंस. ओके, दैट वाज द फर्स्ट वन. सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड. हाँ, हमारे शैलेश सुतरिया सर हर बार हमको कहते हैं तेरी उम्र क्या हुई है. मैं बोला सर मैं थोड़ा थक गया हूँ. नहीं नहीं, जा आधा घंटा सो जा, खड़ा होकर वापस दौड़. हाँ, दैट मीन्स व्हाट? At any cost you have to learn new things at any stage. हाँ, आप सभी के हाथ में मोबाइल है ये स्मार्ट. हाँ, पहली बार 92-93 में वो नोकिया का आप किसी के सर में मारोगे तो सर फूट जाएगा, ऐसा वाला फ़ोन आप सभी ने यूज़ किया होगा, वो एंटेना वाला. हाँ, उसके बाद कैमरा वाले फ़ोन आए 2007-8 में नोकिया के 6600. कितनों ने यूज़ किया है? કર્યો છે, જો આ બધા વડીલોએ કર્યો છે. और उसके बाद सैमसंग ने टच स्क्रीन सबसे पहले निकाला था 2010 में, सैमसंग कॉर्बी. हाँ, आप सभी ने यूज़ भी किया होगा. उसके बाद एक नाम आया था ब्लैकबेरी. आया था ना. हाँ, बहुत बड़ा नाम था, अभी जैसे आईफोन का नाम है वैसे. लेकिन नोकिया, ब्लैकबेरी क्यों पीछे रह गए और सैमसंग और आईफोन क्यों आगे चले गए? Because they learned new things, they adapted new things, and they have moved forward with the technology. That is why. So that all these qualities are required in our kids, and you all are fortunate enough to have your kids in such a institute where all these qualities are being provided. So विद्यादेवम फैमिली के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो कि ये सारी क्वालिटीज़ देता है. अब ये सारी क्वालिटीज़ का प्रदर्शन लेके हमारे प्यारे बच्चे अभी आने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मैं 2 बातें करना चाहता हूँ. आप सभी ने हर एक कार्यक्रम में देखा होगा क्या होता है. एक डांस आया, फिर से एंकर आएगा, कुछ न कुछ बोलेगा, फिर दूसरा डांस आया, फिर से एंकर कुछ बोलेगा, फिर किसी की स्पीच आएगी, फिर कोई स्किट आएगी. सो द थिंग्स आर इन अ ब्रैकेट मैनर. आज पहली बार हमने कुछ नया, कुछ अच्छा ट्राई किया है. वी हैव अरेंज्ड अ फुल स्किट ऑफ 1 hour. 1 घंटे की पूरी स्किट विथ डांस तैयार की गई है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के द्वारा. तो बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां, जो कि यहाँ पे पूरे 1 घंटे का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस लेके आने वाले हैं. उसी के साथ आप सभी को शायद ताज्जुब